Andaman, the first Indian island which we have visited. It will not be over exaggerated if we call it the heaven on earth. The beautiful color of the ocean, the lavish greenery, white sand beach, sea animals and plants, peaceful place to stay, wonders of nature will amaze you. If you are adventure lover, you can do here scuba dive, sea walks, snorkeling, kayaking and many more activities. If you want to know the local culture and you are only interested in people and culture, you will get lot here. You can also able to cross the tribal area. There will be chance to visit the local tribe Jarua here. Lots of islands and the beautiful ocean. You can also visit the only active volcano of India here, the Barren Island, though we haven't visited that. Here in this video, I will share a plan to visit the Andaman. Please note that this plan we made according to our convenience and comfortability. You can change it according to your convenience. I am sharing my plan with you just to give you a rough idea. We spent there 10 days. Some people spent less, some people spent more days there. Today, I will share our 10 days, actually 9 days tour plan with you all. Hello friends, my name is Rajashree and welcome back to my channel Rajashree Sanjay. Let's begin. Andaman is an Indian island and union territory. It is divided into 3 parts: the South Andaman, Middle Andaman and the North Andaman. This time we only focus on the South Andaman. We have started our journey from Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, Kolkata. We took our flight from Netaji Subhash Chandra Bose International Airport at 5:45 am. We reached Veer Savarkar International Airport of Port Blair at 8:50 am. Veer Savarkar International Airport is a very small airport. After reaching Veer Savarkar International Airport, we took a cab to reach Haddo Jetty. It took 5 minutes to reach Haddo Jetty. From Haddo Jetty, we had our cruise booked for Swaraj Deep. हड्डो जेटी पहुंच के हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा था क्योंकि क्रूज छोड़ने की 1 घंटा पहले ही आप जेटी के अंदर जा सकते हो। इतना छोटा सा ही एरिया है। Our cruise starts from Port Blair at 10:45. पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड जाने में आपको लगेगा 1.5 घंटा। The price of the ferry was approximately 1700 per head. We went to the hotel first. हम लोगों का होटल एकदम सी बीच के पास था, तो हम लोग सी बीच में थोड़ा सा नहा के फिर चले गए थे राधानगर बीच सनसेट देखने के लिए। नेक्स्ट डे वी वेंट फॉर एलिफेंटा बीच ट्रिप। एलिफेंटा का टूर सुबह 8 बजे से दोपहर का 1 बजे तक ही होता है, पर कोशिश कीजिएगा कि जितना सुबह आप जा पाओगे उतना सुबह चले जाओ एलिफेंटा के लिए। एलिफेंटा टूर कॉस्ट इज 1000 रुपीज पर हेड और उसके साथ आपको स्नॉर्केलिंग मिलेगा, पर इस स्नॉर्केलिंग के साथ आपको और 1000 रुपीज देके डीप स्नॉर्केलिंग बुक करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कोरल वगैरह देख पाओगे। पर हम लोग टिकट काउंटर से सिर्फ बोट का ही टिकट लिए थे 1000 रुपीज करके, जिसके साथ प्लेन स्नॉर्केलिंग इंक्लूडेड था।
और उसके साथ हम लोग सी वॉक का भी टिकट ले लिए थे, जिसका प्राइस था 3500 रुपीज पर हेड। वेरी नाइस। वो लोग हम लोगों को बता रहे थे डीप स्नॉर्केलिंग करने के लिए और 1000 रुपीज पर हेड एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और वो लोग ये भी ऑप्शन दिए आप यहाँ से भी करवा सकते हो वो टिकट, और या फिर आप एलिफेंटा पहुंच के भी करा सकते हो। हम लोग एलिफेंटा पहुंच के ये टिकट करवाए थे, पर एलिफेंटा पहुंच के हम लोगों को थोड़ा कम लगा था। डीप स्नॉर्केलिंग का प्राइस हम लोगों से 800 रुपीज पर हेड उन लोग लिए थे। हम लोग एलिफेंटा में अपना सामान रखने के लिए एक लॉकर लिए थे, और लॉकर का चार्जेस था 100 रुपीज। एलिफेंटा एक आइलैंड है, फिर भी यहाँ पे सारा फैसिलिटीज अवेलेबल है। यहाँ पे चेंजिंग रूम भी अवेलेबल है। हम लोग यहाँ पे स्नॉर्केलिंग बहुत एंजॉय किए थे। हमारे स्नॉर्केलिंग के गाइड बहुत अच्छे थे, और उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छे तरह से स्नॉर्केलिंग करवाए थे। उसके बाद हम लोग चले गए थे सी वॉक करने के लिए। सी वॉक का एक्सपीरियंस भी हम लोगों का बहुत ही अच्छा था। असली बात तो बोलना ही भूल गए, ये एलिफेंटा आइलैंड भी बहुत ही खूबसूरत था। और हाँ, हम लोग सिर्फ स्नॉर्केलिंग, डीप स्नॉर्केलिंग और सी वॉक किए थे, पर ये 3 एक्टिविटीज के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटीज हो रहा था। आप अगर चाहो तो और भी एक्टिविटीज यहाँ पे कर सकते हो, जैसे जेट स्की राइड, स्पीड बोट राइड, और भी बहुत तरह के बोट के राइड यहाँ पे ये लोग करवा रहे थे। एलिफेंटा का ट्रिप 3 घंटे के लिए होता है। 3 घंटे में आपको वापस आ जाना है। हम लोग दोपहर तक उस दिन वापस आ चुके थे, और थोड़ा सा लंच करके हम लोग सीधा निकल गए काला पत्थर बीच देखने के लिए। पर आप अगर काला पत्थर बीच देखने जाओगे तो सुबह जाइएगा, क्योंकि काला पत्थर बीच सनराइज के लिए फेमस है। उस दिन रात को 2:30 बजे उठ के हम लोग रात को ही 3:30 बजे निकल गए थे वही जेटी के लिए, क्योंकि उस दिन हम लोगों को करना था कायाकिंग। हम लोग पिछले दिन ही वो कायाकिंग के लिए बुक करके आए थे, और कायाकिंग स्टार्ट होता है रात रहते रहते। स्वराज द्वीप के समुंदर में आपको बहुत सारा बायोल्यूमिनेस एनिमल देखने को मिलेगा, पर ये सिर्फ रात को ही चमकता है, तो आपको बायोल्यूमिनेस एनिमल देखने के लिए रात को जाना पड़ेगा। उस दिन रात रहते रहते ही हम लोग कायाकिंग स्टार्ट कर दिए थे, और बहुत सारा बायोल्यूमिनेस एनिमल भी देखे थे। फिर मैनग्रोव के फॉरेस्ट के अंदर कायाकिंग करके सुबह सनराइज देख के वापस आए। उसी दिन हम लोग का क्रूज था नील आइलैंड जाने के लिए। उस दिन हैवलॉक आइलैंड से 10:30 के क्रूज में चढ़ के हम लोग चले गए थे नील आइलैंड। हम लोगों को प्राइवेट क्रूज में हैवलॉक से नील आइलैंड जाने में 1 घंटा लगा था। नील आइलैंड और शहीद द्वीप पहुंच के हम लोगों का फर्स्ट फीलिंग यही हुआ था कि स्वर्ग यहीं पे है। शहीद द्वीप में हमारा होटल था भरतपुर बीच के पास। होटल पहुंच के खाना का ऑर्डर दे के हम लोग चले गए थे भरतपुर सी बीच में नहाने के लिए। भरतपुर सी बीच में नहाते नहाते आपको चारों तरफ दिखेगा बहुत तरह के कोरल। नेक्स्ट डे बहुत सुबह उठ के हम लोग फिर से चले गए थे भरतपुर सी बीच स्कूबा डाइव करने के लिए। ये हम लोगों का फर्स्ट स्कूबा डाइव का एक्सपीरियंस था जो ऑसम था। उस दिन स्कूबा डाइव करके हम लोग बहुत ही ज्यादा थक गए थे। वापस होटल पहुंच के खाना खा के सो गए। फिर हम लोग 4 बजे निकल गए थे लखनपुर 2 बीच के लिए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तरह तरह के कोरल। ये बीच बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे समुंदर के अंदर आप सारे समुंदर के
एनिमल और प्लांट्स को देख सकते हो। यहाँ पे नेचुरल ब्रिज भी है और बहुत सारा सी एनिमल्स एंड प्लांट्स देख के आप यहाँ पे सनसेट भी एंजॉय कर सकते हो। पर सनसेट तक यहाँ पे रुकना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे हाई टाइड आ जाता है। एक्चुअली यहाँ पे जो सी एनिमल्स एंड प्लांट्स दिखता है वो लो टाइड के वजह से ही दिखता है। Next day we again started at morning and we went to Sitapur beach to watch the sunrise. After watching the sunrise at Sitapur beach, we went to Lakhanpur one beach. उस दिन हम लोगों का क्रूज था पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए दोपहर को 3:30 बजे। पर उस टाइम पे पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट पे काम चलने के कारण सारा फ्लाइट्स कैंसिल हो गया था, इसी वजह से टूरिस्ट बहुत कम था और इसी वजह से ही हम लोगों का 3:30 बजे का क्रूज रीशेड्यूल हो गया था सुबह 11:30 बजे। क्योंकि लोग कम होने के कारण उन लोगों का क्रूज फुल नहीं हो रहा था, इसी वजह से वो लोग 2-3 क्रूज के टूरिस्ट को लेके एक क्रूज चला रहे थे। क्रूज के लिए जेटी में 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है, इसीलिए हम लोग लखनपुर वन बीच से 7:30 बजे के अंदर निकल गए। फिर होटल पहुंच के अपना स्कूटी वापस दे के थोड़ा सा फ्रेश होके रेडी होके अपना लगेज पैक करके हम लोग चले आए जेटी पे। और शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर आने में भी अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगता है और इसका भी फेयर है अप्रॉक्सीमेटली 1600 रुपीज पर हेड। हम लोग 12:30 बजे के अंदर पहुंच गए थे पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर पहुंच के पोर्ट ब्लेयर के जेटी से हम लोग कार रिजर्व करके चले गए थे हमारे होम स्टे में। हमारा होम स्टे शहर के अंदर था। हमारा होम स्टे में पहुंच के लंच करके हम लोग पहले एक स्कूटी रेंट पे ले लिए थे। फिर 4 बजे हम लोग निकल गए सेलुलर जेल की तरफ। उसी दिन हम लोग सेलुलर जेल में लाइट एंड साउंड शो देखे थे। जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी। नेक्स्ट डे हम लोग सुबह निकल गए थे फिर से सेलुलर जेल देखने के लिए। इस बार सेलुलर जेल को पूरा घूम के देखने के लिए निकले थे। सेलुलर जेल देख के हम लोग चले गए थे मेरीन पार्क। पोर्ट ब्लेयर में ये मेरीन पार्क ही है वो जगह जहां से सारा टूर ऑपरेट होता है। नेक्स्ट डे यानी कि पोर्ट ब्लेयर में हमारा 3rd डे में हम लोग सुबह चले गए थे नेवल मेरीन म्यूजियम समुद्रिका देखने के लिए। नेवल मेरीन म्यूजियम समुद्रिका देख के हम लोग चले गए थे जोनल एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम देखने के लिए। जोनल एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम देख के हम लोग सीधा चले गए थे कॉर्बिन्स कॉफ बीच में नहाने के लिए। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, हैवलॉक और नील आइलैंड में आप कोई भी बीच में नहा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर पोर्ट ब्लेयर में गिने चुने कुछ ही बीचों में आप नहा सकते हो। कॉर्बिन्स कॉफ बीच उनमें से एक है। कॉर्बिन्स कॉफ बीच में नहा के उस दिन हम लोग सीधा चले गए थे चिड़िया टापू सनसेट देखने के लिए। नेक्स्ट डे यानी कि पोर्ट ब्लेयर में हमारे 4th डे में हम लोग सुबह उठ के चले गए थे रॉस आइलैंड। ये रॉस आइलैंड का टूर भी मेरीन पार्क से ही स्टार्ट होता है। रॉस आइलैंड का टूर होता है 1.5 घंटे के लिए। अगर आप रॉस आइलैंड के साथ नॉर्थ बे आइलैंड भी जाना चाहते हो तो आप दोनों टूर कर सकते हो। ये दोनों टूर करने में आपको टाइम लगेगा 3 घंटा। हम लोग सिर्फ रॉस आइलैंड का टूर किए थे, इसीलिए हम लोगों को टाइम लगा था 1.5 घंटा।
रॉस आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आप लोगों को अंग्रेज लोगों का क्वार्टर, क्लब, स्विमिंग पूल ये सब तो देखने को मिलेगा ही। उसके साथ यहाँ पे है बहुत सारा डियर और इसके साथ इस आइलैंड का नेचुरल ब्यूटी भी बहुत खूबसूरत है। इस रॉस आइलैंड का ही अभी नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड और इस आइलैंड पे रात को लाइट एंड साउंड शो भी होता है। हम लोग रात का लाइट एंड साउंड शो नहीं देखे थे। लाइट एंड साउंड शो के लिए आपको फेरी चार्जेस देना पड़ेगा 300 रुपीज पर हेड फॉर अप एंड डाउन और लाइट एंड साउंड शो देखने का चार्जेस है 350 रुपीज पर हेड। ये टिकट आप कोड स्कैन करके ऑनलाइन बुक कर सकते हो। रॉस आइलैंड से वापस आके हम लोग सीधा चले गए थे चिरिया टापू से थोड़ा आगे मुंडा पहाड़। मुंडा पहाड़ पे उस दिन हम लोग ट्रेकिंग किए थे। ये मुंडा पहाड़ पोर्ट ब्लेयर के एकदम एंड पे है। ये मुंडा पहाड़ पे ट्रेकिंग का एक्सपीरियंस हम लोगों का था ऑसम। उस दिन फिर से हम लोग और एक बार चिरिया टापू में सनसेट देख के रिटर्न किए थे और फाइनली हमारा लास्ट डे यानी कि 5th डे में हम लोग गए थे बाराटांग। रात को 2 बजे उठ के हम लोग 3 बजे निकल गए थे बाराटांग जाने के लिए। पोर्ट ब्लेयर से बाराटांग जाने के रास्ते में हम लोगों को बहुत सारा जाड़वा ट्राइब देखने को मिला था। फिर वहां से फेरी से ओशन क्रॉस करके हम लोग पहुंच गए थे बाराटांग आइलैंड। बाराटांग पहुंच के हम लोग स्पीड बोट से चले गए थे लाइमस्टोन केव देखने के लिए। बोट से लाइमस्टोन केव पहुंच के भी आपको बहुत चलना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको बहुत ट्रेकिंग करना पड़ेगा। ये लाइमस्टोन केव बहुत ही खूबसूरत था। लाइमस्टोन केव देख के वापस आके हम लोग गाड़ी बुक करके चले गए थे मड वॉल्केनो देखने के लिए। And for your information, I just want to add here that India's one and only mud volcano is situated in Baratang. ये मड वॉल्केनो और यहाँ तक जाने का रास्ता भी बहुत खूबसूरत था। बाराटांग का ट्रिप थोड़ा सा हेक्टिक है क्योंकि आपको बहुत रात को निकल के लाइन देना पड़ता है क्योंकि जाड़वा एरिया से ये गाड़ियाँ कॉन्वॉय सिस्टम में जाता है। पर यकीन मानिए ये बाराटांग का ट्रिप हमारी पूरे अंडमान ट्रिप का बेस्ट ट्रिप था। और इस बाराटांग के टूर के साथ ही एंड हुआ इस बार का हमारा अंडमान का ट्रिप। Now about the cost. These are all the details about the cost of our trip. You can take the screenshot. I am ending today's video here along with the Andaman series. Please let me know how was the series. Is it helpful for you? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो with your friends and family, and for more such contents please subscribe to my channel and press the bell icon while subscribing so that you can get instant notification whenever I upload a new video. Finally, thanks for watching and bye bye. See you soon with a new series. Till then, take care and bye bye.